دنیا میں محبت بن کر آیا، اس کے نام میں آپ سب کو سلامتی ہے۔ آج ہم تیسرے کلمے پر غور کریں گے۔ تیسرا کلمہ مفسرین کی رائے میں اور زبان زد عام ہے کہ پہلے تین کلمے جو ہیں یہ خداوند کی دنیا کے لیے کہے گئے، اور اس کے بعد کے چار جو ہیں وہ اس کے اپنے اور الوہیت کے اظہار کے لیے کہے گئے۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خداوند کا اپنی ماں کے ساتھ جسمانی محبت کا ثبوت ہے۔ لیکن ایک کویسچن جو بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا تجسس پیدا کرتا ہے کہ خداوند نے اپنی ماں کو ایک ینگ لڑکے کے حوالے کر دیا۔ جب اس کا تاریخ میں ابھی اسٹڈی کر رہا تھا تو مطالعہ ہوا کہ نوعمر ہے، ینگ ہے اور کام کاج کوئی نہیں کرتا، بچے سے یہ سوچتا ہے پیچھے پیچھے لگا کرتا ہے، تو اس کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ذمہ دار بندے والے اندر یسوع کے جو اپنے بہن بھائی تھے وہ کہاں تھے؟ ان میں سے ایک بھی شریف کے پاس نہیں ہے سوائے مقدسہ مریم جو گھرانے میں سے ہے، ان کے ساتھ ساتھ تھی اور ایک شاگرد تھی، اور باقی جو شاگرد تھے وہ پیشن گوئی کے مطابق تر بہتر تھے، ان کے پاس ہی کوئی نہیں تھا۔ تو کہا یہ بھی جاتا تھا آپشن ہی کوئی نہیں تھی، ایسے بھی ہونا متھے لاتا۔ لیکن جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو بھید کھلے وہاں یہ ثابت ہوا کہ جسمانی محبت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یسوع نے جب دنیا میں اپنا وجود ظاہر کیا تو بڑے انتہائی پروفیشنلزم کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا، اور ہر وقت اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے رہے، جسمانی کوئی ان کی خواہش نہیں تھی۔ اور یہاں بھی کوئی جب میں نے اسٹڈی کی، تاریخ کا مطالعہ کیا، تو یہاں بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ یہ پرسنل محبت کا ثبوت ہے۔ تو یہ محبت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کی تقسیم کا کلمہ تھا۔ اصل میں یہ کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی رسپانسبلٹی، اس نے ماں سے مخاطب ہو کر کہا یہ ہے تیرا بیٹا، پہلی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ وہ دونوں شریف کے پاس کھڑے تھے اور اسے کہا دیکھیے تیری ماں۔ اور پھر دوسرا جو حصہ ہے وہ اس نے شاگرد سے، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جس سے وہ پیار کرتا تھا، وہ والا شاگرد، نارمل والا شاگرد نہیں، جس سے وہ پیار کرتا تھا، اسے کہا دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ اور جو آپ نے حوالہ سنے وہاں جو آخری لائن ہے، اور وہ شاگرد اسی وقت اسے اپنے گھر لے گیا۔ باقی سین کا منظر پیچھے رہ گیا۔ ڈاکٹر سپر جی لکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بلب کی طرح آف کیا ملک میں اندھیرا چھا گیا، کیونکہ لکھا ہے دوسرے سے تیسرے پہر تک ملک بھر میں اندھیرا چھایا رہا۔ تو یہ بلب کی طرح نہیں ہوا تھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے آندھی کا سناٹا اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا شروع ہوا، پھر ڈارک اندھیرا، جس طرح آندھی کا ہوتا ہے، پھر آخرکار تیسرے پہر میں جا کر، دوسرے پہر میں یہ ہلکا ہونا شروع ہوا اور تیسرے پہر میں جا کر یہ مکمل اندھیرا چھا گیا۔ تو اس سے پہلے جو مکمل اندھیرا چھاتا 11 سے 12واں جو عرصہ ہے جب تیسری گھڑی شروع ہونے کی تھی، اچھا پہر جو ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق 3 گھنٹے تک پہر ہے، تو جو تیسری گھڑی اس سے پہلے کیا تھی 12 کے بعد والا جو ٹائم ہوتا، تو خداوند نے یہ کلمہ ادا کر دیا اور دونوں کو رسپانسبلٹی دے دی، اور دیکھا وہ شاگرد اسی گھڑی سے لے گیا، اسی وقت گھڑی تو 1 گھنٹے کی ہے، اسی وقت اسی کا ٹائم ہے، اور جو پہر ہے وہ 3 گھنٹے کا ہے، وہ شاگرد اسی وقت اسے اپنے گھر لے گیا۔ پھر باقی والا منظر تھے مقدسہ مریم ان کے لیے، مقدسہ مریم کے لیے اور شاگرد کے لیے بھی یہ بالکل اچانک سے غیر متوقع سا ایک آرڈر تھا کہ آج سے تیری ماں ہی ہے۔ اس نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرے لیے ایسا ہوگا کہ مجھ پہ اتنی بھاری رسپانسبلٹی ڈال دی جائے گی، اور مقدسہ مریم سے کہہ دیا کہ آج سے تیرا بیٹا یہ ہے۔ باقی یعقوب اور دوسرے جو ہے جس کا مرکز 6 باب میں ذکر ہے، باقی ان کو نہیں رہنا، باقی بہن بھائیوں سے جان چھڑا رہے ہوں، یوحنا کے پاس رہے۔ ماں کے لیے بڑا فیصلہ ہے کہ وہ والے بچوں کو ختم، آج تو نواں بچہ شروع، وہ بچے پھر کہاں رہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو پیچھے نہیں دے رہے کہاں پہ گئے۔ البتہ مقدسہ مریم کا ذکر ملتا ہے کہ یوحنا جب افسس میں منادی کے لیے گئے تو مقدسہ مریم بھی ان کے ساتھ ہی گئی۔ اس کا مطلب ہے باقی بچوں کو چھوڑ دیا، کوئی ماں اپنے بچے چھڑ گئی کسی اور نہ رہنے لگ پہ تو دنیا میں کتنے تانے ماریں گے، یہ یوحنا کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ اور افسس میں جب یوحنا منادی کرنے جاتا ہے تو مقدسہ مریم ساتھ ہی جاتی ہیں، اور آج بھی ان کا مقدسہ مریم کا گھر افسس میں ہے، زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے عامر نام کا، وہاں پہ زیارت کے لیے گیا، آپ سے تصویریں بھیجی کہ مقدسہ مریم کا افسس میں گھر ہے۔ بسمس کے جزیرہ میں جاتے ہیں، رہائی ہو کے واپس افسس میں آتے ہیں، وہیں سے بھی موت مرتے ہیں، اور ان کا جو ان کی یادگاریں ہیں وہ بھی افسس میں آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ
यूहन्ना ने भी मौत मारा था, बाकी सब जो थे किसी न किसी तरीके से शहीद किए गए थे। वो उम्र दराज हुआ था। तो डॉक्टर सुपर लिखते हैं कि शरीयत की तकमील उसने की थी, क्योंकि लिखा है तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। और गलतियों कहता है कि ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि तेरी उम्र दराज होगी। तो वो उम्र की दराजी करके छोटा उम्र होके बना, क्योंकि उसने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की थी, माँ को साथ लेकर था, तो उसकी उम्र भी दराज हुई। दूसरा, मसीह से प्यार करता था, क्योंकि वो उसका खास शागिर्द था, उसका प्यारा था, मसीह से प्यार करता था। इसलिए दो बातों की वजह से उसने उम्र की दराजी पाई, और क्योंकि वो प्यारा था तो खुदावंद ने अपने जो अजीब भेद है उस पर जाहिर किए। तो यूहन्ना की जो इंजील है वो अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो हर आयत में भेद से भेद, भेद से भेद। मैं कई दफ़ा पढ़ता हूँ उसे, जब कभी मेडिटेशन का दिल करता है फिर यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं सब एक तरफ, और यूहन्ना की इंजील के जो भेद है वो खुल खुल कर उबल कर सामने आते हैं। कई दफ़ा पढ़े और फिर भी नई बातें सामने निकल आती हैं। और फिर जो उसके खत है बस ये साबित करते हैं कि खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, क्योंकि मसीह से प्यार करता था। और फिर उसने जिससे बंदा प्यार करता है उसने अपने दिल दिए गला करता है, जो बातें नहीं भी बताने वाली होती वो भी करता है, और उस पर मुहताज वाला है क्योंकि उससे प्यार करता था। और दूसरी बात कि उसने माँ को संभाल लिया था। माँ को क्यों संभाल लिया था? तमाम जो मुफक्रीन है इस बात पर मुत्फिक हैं कि औरत जो है कलीसिया को जाहिर करती है, और एक कोटेशन जो है ज़ुबान ज़द-ए-आम है, कलीसिया मसीह की दुल्हन है। तो ये सारे मुफस्सिरीन देखते हैं, मुत्फिक हैं कि कलीसिया यानी मुकद्दसा मरियम को अपने शागिर्द के पेश करने का मतलब ये था कि कलीसिया को अपने शागिर्दों के हैंड ओवर कर दिया। क्या से ये आपकी जिम्मेदारी है? जैसे पीछे वो जिस्मानी बातों की जगह वो रूहानी बातें कर रहा था, ऐसे भी कोई जिस्मानी कलमा नहीं हुआ, उसने रूहानी तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी, कलीसिया को अलामतन तौर पर दे दिया। जितने भी फिरके हैं इस बात पे सारे अग्री हैं कि वो मुकद्दस माँ है, यसू की माँ है, इसलिए वो रिस्पेक्टेबल है, और कलीसिया मसीह की दुल्हन है, इसलिए अलामतन तौर पर सब कलीसियाओं मसीही कलीसिया को, असल में तो एक ही कलीसिया जो मसीह की है, अलामतन तौर पर कलीसिया को अपने खादमीन के स्पुर्द, अपने शागिर्दों के स्पुर्द, और वो खादमीन जो उसके प्यारे हैं अलामतन तौर पर उसके हवाले कर दिया। एक कलीसिया बागेदन के हवाले की गई थी आदम को, और लिखा था कि तुम बागबानी करना, निगहबानी करना। तो दो बातों की शरीयत वहां भी दी गई थी, दो की यहाँ दी गई। अब आदम बागबानी पर पूरी करते रहे, निगहबानी नहीं करता रहे। बाहर से बंदा आया, उसने उस औरत को यही उस कलीसिया को बहका दिया और कलीसिया खराब हो गई। फिर इसी तरह एक आदमी के गुनाह के सबब से दुनिया में मौत आई, उस कलीसिया की वजह से दुनिया में मौत आ गई, क्योंकि कलीसिया बाहर के एक बंदे के जरिए से बहका दी गई। आज भी कलीसिया जब दूसरे खाना बाड़ा देना, पतरस कहता है ये चुपके नहीं करता, तो खुदावंद ने अलामतन तौर पर कलीसिया उसको दे दी। उसकी जो खास वजह है क्योंकि हमेशा वो अलूही हालत में रहता था। मुकद्दसा मरियम को अगर तारीख के आईने में देखें तो पहली दफ़ा मुकद्दसा मरियम जो खुलकर सामने आती है कि वो भी कलीसिया के लिए काम कर रही है। वो काना गली की शादी के मौका पर यूहन्ना दूसरा बाब 4 आयत में है, उसने निशानदेही की कि यहाँ कोई चीज़ की कमी हो गई। अब वहाँ यसू यहाँ पे बड़ा जीत बात ना, मुझे तुझे इससे क्या काम, सामने लगी लगे। अगर पंजाबी चैनल देखिए तो मुझे से क्या काम, उसका अगर ओरिजिनल वर्जन देखें, गूगल पे देखें, तो उसका नीचे में तर्जुमा आता है बीबी हमें इससे क्या लगे। पंजाबी से देखें तो बीबी मैंने तेरे दिन की काटू दी तो धीरे, अपने नेटिव लैंग्वेज में देखें तो ये लगता सामने तो लगी लगे काटू दी काटू। अब मुकद्दसा मरियम इसके जवाब यही कि चल कर देती तेरी मर्जी। वो लोगों को कहती है कि जैसा ये तुमसे कहे वैसा करना, अगर कहे कि नहीं करना तो ना करे, अगर ये चंद अधिकार में। वजह उसकी क्या है, यहाँ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मुकद्दसा मरियम वो वाहिद कानून थी शागिर्दों से पहले जो जानती थी कि मसीह जो है वो मुकम्मल इंसानियत के जामा में अलूहियत की एक तस्वीर है, और वो जानती थी कि ये कब अलूही बातें करता है, कब जिस्मानी बातें करता है। कभी जब वो घर में होता होगा, ये कयास उन्होंने लिखा, कयास लिखा है, जब कभी घर में होता होगा मुरादी वाली बात नहीं हो रही, हो सकता है वो माथे की मुखातिब करता होगा, माँ जरा दी पकाया, या यूसुफ से वो बात करते होंगे जब वो बड़े के तौर पे काम करते तो हो सकता है भाई क्या दिन है। लेकिन जब वो अपनी अलूही स्टेज पे होता था तो हमेशा उसे एयावत किया जाता था, एयावत। तो मुकद्दसा मरियम जानती है इसने मुझे औरत कहते मुखातिब किया है, ये अलूही स्टेज पे आती है।
ये इस वक्त अलूही रुतबे पे है, ये इस वक्त अल्लाही खिताब में है, ये इस वक्त बेटा बन के जाहिर हो रहा है, ये इस वक्त जो मुझे कहा गया था कि यही अपने लोगों को उनके दुखों से निजात देगा, ये इस स्टेज पर आ गया। जैसे उसने जवाब दिया बीबी मिनट दिन में लगी लगे, उसने कहा जैसा ये तुमसे कहे वैसा ही करना, क्योंकि ये इलाही स्टेज पे आ गया। तो सब मरियम जानती थी। उसका दूसरा सबूत ये है, पतरस को एक दफा मसीह कहते हैं, सारे शिगिर्द खड़े थे, उनका दुनिया में तो की कहीं थी, उन्होंने कोई लिया कहता है, कोई कहता पुराने नबी जी उठे, उन्होंने कहा तुम मुझे क्या कहते हो, क्या मैं तुम्हें खुदावंद का जिंदा मसीह कहता हूँ। पतरस मुबारक हो, ये बात तुमने कही नहीं है, ये तू नहीं कह सकता। मुखातब किया है, और क्या क्या मुखातब किया, बीबी क्या क्या मुखातब की है। तो ये इस वक्त अलूही स्टेज पे है, इंसानियत के जमा में नहीं है, इस वक्त ये खुदाई स्टेज पर है। तो उसने जैसे ही कहा कि पतरस मुबारक हो, ये बात मेरे बाप ने तुमसे कही है, क्योंकि बगैर उनके कोई नहीं कह सकता कि मसीह बेटा है। तो जब वो उसे औरत कहकर पुकारता, वो जान जाती थी कि ये इलाही स्टेज पर है। तो जैसे ही काना गली में उसने कहा औरत मेरे नहीं लगे, उसने कहा जो तुमसे ये कहे वो करना है। खुदाया के स्टेज पे आ गया थे, इधर इंतजार कर रहे था, क्योंकि लिखा है कि वो शुरू ही से यीशु को यशुआ मानती थी, मौता मसीह मानती थी। मसीह लूका 2 में लिखा है कि वो इन तमाम बातों पर दिल में रखकर उन पर गौर करती रहती थी, मेडिटेशन करती रहती थी, मेडिटेट करती रहती थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। शमौन की पेशन में जो हुई थी, तेरी जान तलवार से छिद जाएगी, सलीब पर थी वो जान गई थी कि छिद गई और मेरी जान, इसलिए उसने कहा और देख तेरा बेटा ये है। और उसने फिर रोहन हो जाओ मेरा जबूब से रह ही गया पीछे, तो मेरी वो दूसरी कुड़ी रह गई है। नहीं, शगीर उसे उसी वक्त अपने घर ले गया, तो भी नाली टूट गई, सारे बच्चे उतर गए, क्योंकि पता था कि इलाही हुक्म आ गया। इस वक्त वो खुदाई स्टेज पर है, इस वक्त वो डिवाइन स्टेज पर है, अलूही स्टेज पर है। उसने मुझे और क्या क्या मुखातिब कर दिया, मान ही क्या हो गए, लिहाजा मुझे मानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इलाही हुक्म आ गया। उसने कहा और ये है तेरा बेटा, सब कुछ छोड़कर वो भी साथ, क्योंकि वो रूह कुदरत की कुदरत से हामला, इसके बगैर उनके ये क्या नहीं कर सकता कि ये जिंदा खुदा का मसीह है। आगे वो शगिर्दों को ये कह रहा है, यहाँ से सबूत मिलता है कि मुकद्दसा मरियम जानती थी कि ये जब औरत क्या था ढूंढा कि ये मेरा, क्योंकि वो शुरू से साथ की माँ जानती है ना, बच्चा वो गदम होती है, तो पता था कि मेरे बच्चे ने औरत क्या है तो हुआ क्या। क्योंकि पहला क्रंथियों उसका 2 बाब 10 आयत में लिखा है, रूह भेद की बातें बल्कि तह की बातें भी दरियाफ्त कर देता है। ये रूह, जिस रूह की कुदरत से वो हामला हुई थी, वो रूह अंदर की बातें बल्कि तह की बातें भी दरियाफ्त कर देता है। 2 क्रंथियों 2:10 आप पढ़ लेना, रूह भेद की बातें, अंदर की बातें, तह की बातें दरियाफ्त कर लेता है। डिस्कवरी, इजाद और दरियाफ्त में फर्क होता है। दरियाफ्त वो जो पहले से मुकर्रर हो चुकी है, मुकाशफा में बातें जो बाद में दरियाफ्त हुई है वो पहले लिखी जा चुकी हैं, तो रूह ये सारी बातें दरियाफ्त कर लेता है। मुकद्दसा मरियम क्योंकि रूह कुदरत की कुदरत से हामला थी, उसने दरियाफ्त कर लिया, इसने मुझे औरत कहा है, अब ये खुदाई स्टेज पर है, अब ये अलूहियत की स्टेज पर है, अब ये मसीह होने की स्टेज पर है। इसलिए उसने कहा जैसा ये तुमसे कहे वैसे ही करना। जो स्टेज पे आ गया, मेरी स्टेज का बड़ा इंतजार में कर रहा। यही रूह कुदरत की वजह थी कि वो जान जाती थी कि रूही भेद क्या है, इंसानी भेद क्या है, और उसने अलूही भेद को तब कहा, यस तुमने कहा कि मेरा बेटा जो है यही आज से, दुनियावी बेटे साइड पे, यही आज से मेरा बेटा। और जैसे ही वो शगीर उसे अपने घर ले गया, वो भी साथ गई, वो एक्सेस में गया मुनादी के लिए, वो भी साथ ही गई। बाकी बच्चे तो फिर जिक्र नहीं मिलता, बाकी बच्चे कितने रह गए। तो उसने उस हुक्म को लब्बैक कहा। दलील की शादी पर माँ की मर्जी नहीं चली। अक्सर मैसेज मैंने भी सुने, कई जगह कहा जाता है उन्हें तो मनादी माँ ने कहते शुरू की थी, माँ तो बगैर तो कदम नहीं टूट चलता। माँ ने कहा था कि जैसा कि तुमसे कहे वैसा कर, लेकिन नहीं जी माँ ना दी तो उन्हें और 2-4 साल और भी मनादी करेंगे, ऐसा नहीं है। माँ ने कहा था, अब वो हमने ये देख लिया है कि औरत जो है कलीसिया की नुमाइंदगी करती है, तो कलीसिया का काम जस्ट निशानदही करना कि पादी साहब इस चीज़ की जरूरत है, पादी साहब ऐसी चीज़ की जरूरत है, पादी साहब चाहने हैं कि एलजी के बाल हो जाए, पादी साहब चाहने हैं कि ऐसा सिस्टर पे हो जाए। कलीसिया का काम, औरत का काम निशानदही करना है, और फिर ये भी है कि जैसा पादी साहब कहेंगे वैसे हो। तो उस औरत ने, उस कलीसिया ने निशानदही की थी कि यहाँ मैं की कबूल हो गई है, और फिर खुदावन ने उस मैं को प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, इब्राहिम की कहानी के मतलब किस किसने सुना है? एक क्वेश्चन है सबसे, इब्राहिम की कहानी सबने सुनी है, सच्ची है कि झूठी है बाइबल से?
इब्राहिम वाकई आया सी क्या जी है? वाकई आया सी? अच्छा, एक हवाला पढ़ लेते हैं क्योंकि कलमों में टाइम थोड़ा कम होता है। गलतियों 4 बाब 22 से 24 आए, मैं पढ़ देता हूँ। ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आजाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील है। क्या तमसील सीखना नहीं सीखना? पता, इन बातों में तमसील है, इन बातों में तमसील है। ये वाकया तो सच्चा ही है, लेकिन ये बतौर तमसील तुम्हारे सामने देखा गया है कि कुछ दुनियावी फर्जंद नहीं, कुछ रूहानी फर्जंद नहीं। दुनियावी फर्जंद को उसने छोड़ दिया था, कसम मरियम ने। तो दुनियावी उसके बेटे थे, इब्न जकूब जो शागिर्द था उस समय दुनियावी फर्जंद उसने छोड़ दिए थे। हाजरा को भी निकाल दिया था, इस्माइल को भी निकाल दिया। दुनियावी फर्जंद थे, उसको अपनी कलीसिया से, अपने घर से निकाल दिया था। और जो वादा के फर्जंद थे वो साथ रखे गए। यूहन्ना को साथ रखा गया। कलीसिया यूहन्ना जो वादा के सबब से, जो रिस्पांसिबिलिटी देने के सबब से, खुदावंद ने रिस्पांसिबिलिटी थी, अटवाया कलीसिया से दिया, अटवाया बेटा तेरा, उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो थी, जो खुदा ने दी थी, वही हुआ। वहां भी वादे के फर्जंद को, इजहाक को साथ रखा गया, और जो जिस्मानी तौर से पैदा हुआ उसको निकाल दिया गया। बस हम ये कह सकते हैं कि ये कलमा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कुछ जिम्मेदारियों की तकसीम का ये कलमा है। और खुदा अपनी जिम्मेदारी उससे ही देता है जिसे वो प्यार करता है। और लिखा है उस शागिर्द से जिससे वो प्यार करता था, उससे कहा जिन्हों प्यार नहीं करता उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। जिससे वो प्यार करता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो ये कलमा कलीसिया से मोहब्बत और कलीसिया के खादमीन को जिम्मेदारियां देने का एक कलमा है। जिम्मेदारी हमेशा घर के मुख्तार को दी जाती है, वारिस को दी जाती है। उसके अलावा वादा तो नहीं किया जाता का बीचा पिया रखना है, हमेशा जिम्मेदार को दी जाती है। उस वक्त माँ और शागिर्द दोनों सलीब के पास थे। जो सलीब के पास था उसे जिम्मेदारी दी गई है। आज के लिए हमारे यहाँ सीख ये है कि कलीसिया जो मसीह का बदन है और हम कलीसिया हैं, हम और अपनी नस्ल से हैं। जिम्मेदारियां हमारे पास हैं, हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं कुछ, लेकिन जो जिम्मेदारी मसीह ने दी है उसको दी जाएगी जो सलीब के पास है। बाकी शागिर्द सलीब के पास नहीं थे, उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। वो फिर घर जाके जी, जैसे पतरस कहते हैं, छोटे छोटे विजिट करके कलीसिया तोड़न का बायस पड़ते हैं। जिम्मेदारी उसके पास है जो सलीब के पैगाम के पास है, जो सलीब के पास खड़ा है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आप में से कितने सलीब के पास है? सारे चर्च में बैठे हैं, जिम्मेदारियां चंद एक कोई नहीं। अगर किसी ने जिम्मेदारी को बड़ी बच्चे नहीं, जिसको जिम्मेदारी दी जाए उसको खुदा प्यार करता है। और जिनको दी गई है वो चर्च नहीं होते, तो फिर मैंने होता डिस्टर तो बात कटा देंगे खासा मेरी के लिए। मसीह को इसकी जरूरत है। मसीह ने जब हुक्म दिया कि उससे गली का बच्चा प्यार है वो ले लो, और अगर वो तुमसे पूछे तो कहना मसीह को इसकी जरूरत है, खुदावंद को इसकी जरूरत है। जिसने चर्च में खिदमत करनी है खुदावंद को इसकी जरूरत है। निशान को थोड़ी कोई बात थोड़ी कटानी है, खुदावंद को आपकी जरूरत है। खुदावंद ने आपको जिम्मेदारी दी है, किसी ने दी नहीं, ना ही बादशाह ने दी है, ना ही कमेटी ने दी है। अलाम पर हम जरूर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मसीह को उसकी जरूरत है, चर्च को उसकी जरूरत है। हमारी कलीसिया में होने वाले काम मसीह को आपकी जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ने 5 टोड़े देते हैं, किसी ने 3, किसी ने 2, तो उन्हें क्या देगा का काम कर जो तीनों है ना वाजत पैशमा के काम करना है तू, लेकिन वो फिर हाँ तो मैं छुपा के भाई ना सिर्फ गीत ही गाने ये जाओ के गीत गाओ तो उनका कोई है नहीं, अपना थोड़ा दबा के बैठ जाए। आपको अगर जिम्मेदारी की तकसीम दी है तो उसे पूरा करना है, उसी घड़ी पूरा करना है, इन्हीं के अगले साल पूरा करना है, उसी घड़ी पूरा करना है। जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है अपना जायजा लें। आज से पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल, 5 साल जब से ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है, सबको ब्लेस किया गया। यहाँ कितने लोग हैं जो सलीब के पास है, सलीब के पास खड़े थे, और 4-5 और तक किया सर, जिम्मेदारी एक को दी गई है। आप भी सारे सलीब के पास है, सारे चर्च के अंदर जिम्मेदारियां किसी एक को दी जाती है जो अपने आप को पेश करता है, जो अपने मसीह के साथ साथ रहता है, जो उसका प्यारा होता है, उसे जिम्मेदारी दी जाती है। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, अपने आप से दरखास्त करता हूँ, सबसे जिनको जिम्मेदारियां दी गई है, अगर वो नाम में कम है तो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। चर्च को आपकी जरूरत है, वो अपना 100% दें। जिस तरह मुकद्दसा मरियम और यूहन्ना ने दिया, वो उसी वक्त चले गए जैसा उन्हें कहा गया। जिनको पहले दी गई थी, हो सकता है वो नाप में इस वक्त कम हो,
वो वापस चर्च में आए, क्योंकि ये कलमा जो है सिखाता है कि ये जिम्मेदारियों की तकसीम का कलमा है और उसको पूरा भी करना है, जैसे ये होना उसने कहा। और जिनको अब जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, अभी भाई साहब आए हैं, बहुतों के नए काम लगाएंगे, तो मुकद्दस मरियम और यूहन्ना की तरह लबैक करें कि यस हम हाजिर हैं, जैसा मसीह कहें तो उसी वक्त वो काम करना शुरू कर दें